कोई बात नहीं, भाई तुम अपनी बड़ी बहन है, तुम्हारे ध्यान आ जाएगी। Something about how being associated with Bharat Talkies and how being part of Shilp Ek Baar film on child labor. Can I start now? Yeah, start. I am Sunil Golwalkar, producer, director, writer and casting director of the short film Sirf Ek Baar. Sirf Ek Baar is the movie on child labor, and it is 15 minutes movie, a great subject and a message to the public. And the movie, if you start, then till end you will not get bored at all. I have shown this movie to many teenagers also, and they also like the movie, and they said it's a really great subject and we have learned something from the movie. So better if you watch the movie, you will come to know what I wanted to say. A very touching subject, and I am really very much thankful to Mr. More and Bharat Talkies that they have selected our movie, and they are going to show it in their OTT platform. And it is really a great pleasure for us that Bharat Talkies has selected the movie, and we would definitely would like to wish a great success in this Corona period in Bharat Talkies. Thanks, sir. Thanks for That's all. introduction and tell something about being associated with Bharat Talkies and being part of Mrs. Navya. Sure. So my name is Pratik Prajosh. I'm a film director, and I've directed this film and produced this film, Mrs. Nambia. It's a short documentary. It's a documentary film on a teacher who is about 95 years old and still continues to go to school. And she's been a teacher for over 70 years. And the film kind of chronicles her life and talks about the impact that she's had on education and the students that she's taught. Well, it was definitely a very inspiring subject to make a film on, and considering that teachers don't get enough credit in our society and in India, I thought a film of this sort of importance was required to be made. And I'm very grateful and very happy with the positive impact that it's had. And a platform like Bharat Talkies, well, this is an added surprise that has come up, because I had just submitted it to a film festival, and then with the kind of recognition that it's got, with a couple of entries into various film festivals around the world, and winning in a couple of festivals has been very heartening to know. And to know also, on top of that, getting shortlisted for this Bharat Talkies is a very encouraging thing for a lot of filmmakers, because when I heard from Vikrant that there's an initiative on social awareness, and around that films are being centered, I thought that was a very interesting initiative, and happy to support the cause. And yeah, that's all. Thank you. बच्चे की शुरुआत कीजिए, जानना चाहूँगा कैसा महसूस कर रहे हैं भारत टॉकीज से एसोसिएट होकर, और आपकी जो फिल्म है उसके बारे में बताइए, और विक्रांत सर के बारे में। हाँ, मैं शुरुआत विक्रांत सर के साथ करूँगा। मैंने एक कंपटीशन किया था, मोनो एक्ट कंपटीशन किया था। उस वक्त उधर विक्रांत सर जज थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि विक्रांत सर ने मुझे सिलेक्ट किया था, मतलब हमारे भारत टॉकीज़ के लिए। तो उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लगा, कोरोना की वजह से कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद लॉकडाउन खुला और मैंने ये मेरी बालपन शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो विक्रांत सर ने कांटेक्ट किया था कि तुमने बनाई क्या, वो सब चर्चा हो गया। और उसके बाद विक्रांत सर ने मुझे चांस दिया कि इधर भारत टॉकीज़ में मुझे आने का चांस दिया। अभी मैं फ़िलहाल मेरे फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, एक जनरेशन की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अगले जनरेशन को कुछ दे, तो उसकी अगली जनरेशन की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अगली जनरेशन को कुछ दे। मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि बचपन के खेल, वो बचपन और आज हम, एक ज़माना ऐसा, एक वो दौर था उस वक्त कि उस बचपन के खेल में बचपन गुजर जाता था। पर आज के दिनों में जब हम मोबाइल में आते हैं
तो आज के खेलों में बचपन ख़त्म होता जा रहा है। एक ये बताना चाहता था, और दूसरा ये कि इंसान बड़ा हो गया है, आई एक्सेप्ट, मतलब हर कोई बचपन था, हर कोई बच्चा था, पर आज एक कंडीशन पे आके हर कोई बड़ा हो गया है। और आज किसी को पूछा कि आपका फेवरेट, अब आप बताइए कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, तो एक स्माइल आती है, बचपन में आप कौन सा गेम खेलते थे, तो एक स्माइल के साथ आप बोलते थे कि हाँ यार मज़ा आता था उस वक्त, पर अब क्या हो गया है, इस सेंटेंस को हम मोरल डाउन हो जाता है। तो मुझे ये बताना था लोगों को कि हम मिट्टी से निकले और अंगूठे पर आ गए। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ बदलना चाहिए, पर फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ अटैचमेंट, कुछ मेमोरीज़, ये भी मायने रखते हैं ना। तो मुझे मेरी फिल्म के साथ, मतलब मेरी टीम मेंबर्स मनविता जाधव, ऋतिक जाधव, गणेश राठौड़ और भी मेंबर्स हैं, हमने मिलकर ये सोचा था। और मेरी बहन भाग्यश्री विभार ये इधर है, मैं आज ही उसने भी बहुत सपोर्ट किया, और मेरी माँ स्पेशली, वो हमेशा एक्साइटेड रहती है। तो भारत टॉकीज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया इधर आने का। और मेरा स्पेशली एक दिल में है कि सोसाइटी में कुछ अच्छे कंटेंट जाने चाहिए, तो मैंने शुरुआत किया था बालपन से। दैट्स इट, थैंक यू। Ma'am, start with your introduction and tell something about, Montu Ki Kultur, and you are a counselor as such. So what about Vietnam, who has taken an initiative for the children preparation as such? Yes. Children are born in a house with parents. So it becomes parents' duty to bring up the child, inculcating all possible good things, which is positive. And no parent can teach something which is negative to it. No parent does that. No mother, no father does that, right? So every child has been taught good things at home. So when he is put in the school, nowadays the children are very, very early they are put. Not at all necessary. If the parent is educated, why can't you educate your child till 6 years? Today, even in foreign countries, 6 years is the time to go to school for the child. You put a child at 1.5, 2.5, what nonsense? At least 3 years you have to remain with your child, because whatever you inculcate into the child up till the child is 3, whether it is a boy or girl, no matter what sex, the child learns. Out of all this, mother teaches this, she learns. Father teaches this, she learns. Any elders at home, she learns. She or he does learn. And that is registered in the mind, like your mobile. Okay? So, this culture, this is beautiful culture inculcated by our parents. The same thing, I am a mother and a teacher and a grandmother, okay? I am a teacher. I've spent my more than 25 years. I think in Mumbai there is not a school where I have not worked as a temporary teacher, obviously, because of my age. So if there are about 70 students, every child is brilliant by its own. You cannot brand a child, oh, he's a slow learner, he's a dud, he's too intelligent, he's brilliant. You have no right to judge pass such comments on any child for that matter. Okay? Because every child is got some talent or the other, or some potentiality in the child, which has to be looked into. If the child has been looked into at home, fine. You can just develop the child. If you give a child a pencil and a book, plain book, it goes on drawing, and when it draws, a child who draws circle, they say the child is very intelligent, because to draw a circle is not easy. Okay? So this is how you have to promote your child, and every child has got some talent or the other. You do not know, So the mother who is spending most of the time with the child, she should be a mother who can judge the talent of the child. Okay. And for example, I would say, my daughter, she's got a very good voice, and I was after her
to be put in the music. And I said, come what may, I will see that she becomes a singer. She is a singer today. So I don't put my wish into the child. I put the wish of the child. Because you did not become a doctor or a singer or an actor, you can't impose that thing into your child. You have no right to do it. Who has given you the right? The child is born with all the potentialities it has. You have to just find out, right? Yes. And take the child into the right line. So she's got a very good voice, and when she sings, God, if she sings a devotional song, God has to come listen to her. That is how she sings. So from the age of 3, I was finding for a good teacher. I could not find one, though I was in South, Carnatic music. I'm a South Indian, Telugu, who can speak all the South Indian languages to the best of my ability. So I can convey to all. So don't ever underestimate or overestimate your child. Child is a child. Why don't you have to look at the 5-year-old child as a child? You cannot be seeing the child as an adult. No way. No way you will do this mistake as a parent, please. And you cannot impose or trust on the child. भोजा यहाँ पे, स्कूल से आ गया, फिर भोजा लो, फिर ट्यूशन पे जाओ. अरे you have got that much money to spend, लाखों रुपया स्कूल में साल भर का लेता है. क्या सिखाते कभी किसने देखा नहीं. स्टाफ कभी देखा नहीं. बिल्डिंग देखा, बस नाम हीरानंदानी, चलो लगाओ. अरे दूसरा मेरा नेबर उधर में जाता है तो मेरा भी बच्चा उधर जाएगा. कभी सोचा है? बच्चा सीखने जाता है. Okay, he's not going to see the building. So what you have to see in the school is the staff. The staff. I'm a teacher. I'm 68 years old. Okay, I have gone to so many schools in Mumbai. I took the pleasure of teaching. There were 69 children. They were in the 9th standard. Believe it, please believe it. In Airoli, Saraswati Vidyalaya. The children were not at all good in English, and I was an English teacher. I said, every one of you can speak English, why not? Why not? If I can speak Marathi, can speak Hindi, why not? English is the easiest subject. Okay. Thanks, ma'am. Thank you so much. Thank you very much. बच्चे के साथ शुरुआत कीजिए. अपना बताइए क्या कहना चाहेंगे आप. सेक्रेटरी मोंटू की पट्टी जो बनाई है विक्रांत सर ने, एक चाइल्ड डिप्रेशन इशू बहुत बड़ा इशू आज के इस टाइम में, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा इनिशिएटिव है उनके तरफ से? ये विक्रांत सर ने जो टॉपिक चुना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे मैं पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे मेरे पास सभी बच्चे आते हैं तो उनका एज होता है नियर अबाउट 12 साल 15 साल. तो उनके कंप्लेंट्स लेके आते हैं पेरेंट्स की, ये बहुत गुस्सा करता है, या तो इसे गुस्सा आता है तो ये चीज़ फोड़ देता है, किसी के साथ झगड़ा करता है. तो वो हमें देखने में अभी का प्रॉब्लम लगता है, बट एक्चुअली उसकी शुरुआत उसके बचपन से शुरू होती है. जैसे वो छोटा होता है तब हम वो छोटा है करके हम उसको छोड़ देते हैं, बट वो आदत जैसे पड़ते जाती है तो उसके बाद उसका नेचर डेवलप होता है. जैसे विक्रांत सर ने ये टॉपिक चुना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, तो जैसे आजकल ऐड आते हैं कि कोडिंग के बारे में या तो कंप्यूटर कोडिंग के बारे में, तो वो सेम कोडिंग अपने ब्रेन में होना बहुत ज़रूरी है. जब हम बचपन से बच्चे को उसकी जो क्या सही है क्या गलत है हम बताएंगे उसको, तो ही वो बच्चा बड़े होने के बाद उसका नेचर अच्छा डेवलप होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये प्लेटफॉर्म जैसे भारत टॉकीज का जो प्लेटफॉर्म दिया है विक्रांत सर ने, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे भी कुछ थॉट्स होते हैं, मुझे भी कुछ बताना होता है, बट वो मैं बता नहीं पाता हूँ. तो जैसे विक्रांत सर ने सोचा और उन्होंने करके दिखाया, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस तरह की पिक्चर देखना पेरेंट्स को, ताकि वो समझें कि क्या साइकोलॉजी होता है. ओके, तो पेरेंट्स का मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने ये पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझोगे कि बच्चों को क्या समझाना है, तब तक आपको नहीं समझेगा तो आप बच्चों को नहीं समझा पाओगे. और ये पिक्चर के ज़रिए तो एंटरटेनमेंट है, तो आप खुद पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाओ, उनके वो मूवी देख के वो समझेगा उनको, वो समझने के बाद आप भी कुछ उस थॉट्स, वो मूवी से लेके आप वो थॉट्स वो बच्चों तक पहुंचा सकते हो. जैसे हम आजकल क्या होता है, मतलब जो लोग बोल रहे हैं वो सिर्फ हम सुनते हैं. जैसे करेले की सब्जी है,
सबको लगता है कि कड़वी होती है। 90% लोग बोलते हैं कि करेले की सब्जी मुझे नहीं खाना, कड़वी होती है, बट उसमें से 80% लोगों ने कभी खाई नहीं होती है, सिर्फ वो सुना होता है कि कड़वी होती है तो मुझे नहीं खाना है। तो वो थॉट्स अपने डेवलप होते हैं हम आजू बाजू का देख के। तो आजू बाजू में आपको देखना है कि उसके आजू बाजू में लोग कैसे हैं, उसका सराउंडिंग कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पेरेंट्स से कि आप जाओ, मोंटू की पलटन आप मूवी देखो, वो बहुत अच्छी है और आप उससे कुछ सीखो और आपके बच्चों को भी सिखाओ। थैंक्स फॉर ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है मोंटू की पलटन के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था और सब्जेक्ट जो है सबसे पहले वो एक सोशल सब्जेक्ट है और बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है आज के दौर में, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे विक्रांत सर के बारे में और ये फिल्म के बारे में। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ विक्रांत जी का, जिन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया है जो बहुत ही इमोशनल और करुणा भरी सब्जेक्ट है। और अभी अभी जो माता जी यहाँ पर बोल के गई हैं, मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बाद हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। विक्रांत जी जब ये सब्जेक्ट लेकर मेरे पास आए थे तो मुझे सॉरी टू से मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा ये सब्जेक्ट कहाँ चलेगा, कौन देखेगा। और मोंटू की पलटन बच्चे लोग होंगे, इसमें कुछ मैंने भूत अंकल किया था और बच्चों के बहुत सारे सीरियल और फिल्म मैंने किया हुआ है जो कमर्शियल बहुत हिट रहा है और बहुत अच्छा, मतलब उसमें बहुत अच्छा अनुभव मेरा भी था और बच्चों का भी था, दर्शकों का भी था। तो मैं सोच रहा था कि इसमें तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, कहीं कॉमेडी नहीं दिख रही, कहीं कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा। लेकिन जब मैं शूटिंग पर गया और जब मैं इनका टेकिंग देखा, इन्होंने जो हमें समझाया और उसके बाद मैं जब प्ले करता था वो कैरेक्टर, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये एक्चुअल कैरेक्टर क्या है और इनकी जो मेहनत है, ये जो चाहते हैं कि दुनिया को या हमारे कम से कम हमारे भारत के लोगों को जो दिखाना चाहते हैं उसका अगर 10% भी दिखा पाए और लोग देख पाए तो ये फिल्म सफल है। और फिल्म सफल है तो हमारे भारत के पब्लिक, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर न बनाए, बच्चों के ऊपर मतलब दिन रात पढ़ाई करो और बच्चा चाहता कुछ है उससे करवाते कुछ है, बहुत सारा उनके ऊपर बस्ता बोझा लाद दिया जाता है। तो वो सब पेरेंट्स ज़रूर सीखेंगे इस फिल्म से। तो पेरेंट्स को ही नहीं, बच्चों को ही नहीं, पूरे परिवार को इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। विक्रांत जी ने मेहनत की है, इन्होंने इस फिल्म को लिखा है और बहुत मेहनत किया है इस फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन अब जिम्मेदारी होती है हमारे जो भी पब्लिक हैं, जो भारत की जनता है, अब नाम भी है भारत टॉकीज़, तो भारत टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत कम पैसे में, दूसरे चैनल वाले तो ज़्यादा पैसा सब्सक्राइब कर लेते हैं, ये बहुत कम पैसे में है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सभी दर्शकों से, जो भी मेरे दोस्त हैं उन सभी से, जो नहीं हैं वो उनको मैं दोस्त बनाता है। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। मोंटू की पलटन, साथ ही ये फिल्म है जिहाद है, एक और ये बच्चे वाली फिल्म सिर्फ एक बार है, ये फिल्म है जो टीचर के ऊपर फिल्म बनाई है। तो ये सब फिल्म भी आपको देखने को मिलेंगे और ये सारी की सारी फिल्में आपको शिक्षा देकर जाएगी। सो मैं तो बस हाथ जोड़कर एक ही विनती करता हूँ आप सभी दर्शकों से कि मोंटू की पलटन को देखने के लिए अगर आपने इस भारत टॉकीज़ को सब्सक्राइब किया तो साथ में आपको बहुत कुछ पैकेज मिलने वाला है। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है के गोस्वामी एंटरटेनमेंट, उस पर मैं साइलेंट कॉमेडी बनाता हूँ। वह साइलेंट कॉमेडी अब भारत टॉकीज़ पर दिखाया जाएगा, जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता है और बहुत सारे कलाकार नहीं हैं। मैं अकेला हूँ और ये मेरा छोटा बेटा है, मैं और ये और एक दो और कलाकार मिलकर हम लोग ये सीरियल बनाते हैं, जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता है, बिना डायलॉग का सीरियल है, वो भी भारत टॉकीज़ पर मौजूद है। बस इतना ही चाहूँगा कि ये लोग बोलते हैं
कि 2-4 मोदी और हो जाए तो देश का तरक्की हो जाए। मैं बोलता हूँ 2-4 विक्रांत मोरे और हो जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाए। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। विक्रांत जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? कंटिन्यू करो सर, आप कंटिन्यू। विक्रांत, सबसे पहले तो सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी मतलब सेंसेशनल है, मतलब आज के दौर से बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। ये बताइए क्यों इंस्पिरेशन आपको मिला ऐसा है कि आप ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाएं, और काफ़ी काउंसलर्स ने बोला है कि पेरेंट्स को ज़रूरी है कि उनकी साइकोलॉजी समझे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली सबसे मेन चीज़ ये है कि आजकल के सोसाइटी में ना सिर्फ डिप्रेशन की और सुसाइड की बात होती है, लेकिन सुसाइड और डिप्रेशन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समाज में ना नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे कि पहले कोई भी इंसान डिप्रेशन से गुजरता है और डिप्रेशन का एक फाइनल स्टेज होता है कि सुसाइडल थॉट्स या वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। लेकिन इसके बहुत पहले बिहेवियर चेंजेस आते हैं हर इंसान के अंदर। या तो वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, या तो बहुत गुस्सा हो जाता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, किसी से बात करना बंद कर देता है और अपनी एक दुनिया बना लेता है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है ना, वो उसके जीवन के चाइल्डहुड से उसका कनेक्शन है बहुत बड़ा। इसका रीज़न ये है ना कि हम यंग होने के बाद में जैसे कि 99.9% इंसानों को प्यार हो जाता है, जो बहुत खूबसूरत एहसास है। लेकिन अगर वो प्यार ना मिले तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है। फिर उसके बाद में उसका जीवन शुरू होता है, जो फैमिली लाइफ शुरू होती है, उसमें भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं। तो जीवन अप एंड डाउन से भरा हुआ है, लेकिन ये अप एंड डाउन्स को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है वो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी शुरुआत जो है हमारे चाइल्डहुड में छुपी हुई है, और इसका जो मेन स्तंभ है वो हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स है। तो ये मूवी को बनाया जब मैं लिखा गया तो यही चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता था कि ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, पॉजिटिविटी बोलना कि यार किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिव करना और बोलना, सोचना, दोनों में अंतर है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें हमारे हैबिट में लाए तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। अक्सर आप सोचते हो कि यार नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव थिंक, लेकिन पॉजिटिव कैसा होगा जब जीवन में ही नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव सोच कैसा सकता है। इसके लिए हमको हमारे प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। ये मुझे ऐसा लगा, और इस थॉट के ऊपर मैंने ये फिल्म बनाई, और आज 29 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो बस यही। तो विक्रांत जी, जब आपने इस मूवी की शुरुआत की मोंटू की पलटन, तो जिसमें आपने जिस तरह से आपका बिल्कुल सब्जेक्ट बहुत ही अलग था हर फिल्म से, तो आप जब के जी के पास गए होंगे सब्जेक्ट को लेकर, आपके माइंड में कैसा है? जो एक उनका कैरेक्टर है, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, जिसमें हम बच्चों को काफ़ी हंसाते हैं, एक फैमिली को हंसाते हैं, तो आपने उनको क्यों चुना क्योंकि ये सब्जेक्ट अलग था? और किस प्रकार आपने जब अपना प्रोजेक्ट उनके सामने रखा तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये है कि के जी का मैं और मेरे बच्चे दोनों भी फ़ैन थे, और मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी मुझे डायरेक्टर लेवल तक लेके आएगी और मैं कभी फिल्म मेकर भी बनूंगा। तो जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में के जी का जो इमेज बैठा था, तो मैं उनको लेके कुछ फिल्म बनाना ही चाहता था। और जब मैंने फिल्म लिखने की शुरुआत की थी ना, तो मैंने उनका कैरेक्टराइजेशन को ना नज़र में रख के ही उसको लिखा गया था। और जब के जी के पास में गया तो मेरे पास में बजट, सबसे मेन चीज़ था बजट नहीं था मेरे फिल्म का। और जब मैंने ये बोला कि सर बजट का ये इशू है, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट पे बना रहा हूँ, तो के जी का मैं बहुत ऋणी रहूँगा आगे भी, चाहे कितना ही बड़ा मैं फिल्म मेकर बन जाऊँ। के जी ने बोला आपका सब्जेक्ट जो है वो इतना पावरफुल है कि आप पैसा साइड में रहने दीजिए, आप बताइए कि आपको शूटिंग कभी करनी है। इसके लिए थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे वक्त दिया और मुझे वो रिस्पेक्ट दी। इसी तरीके से ये इस फिल्म को बनाया गया है। विक्रांत जी, ये जो अवार्ड्स आपको मिले हैं काफ़ी सारे, उसको आपको इस साल ही मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये अवार्ड्स कितना आपको कॉन्फिडेंस देता आगे चल के इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए? ये है कि अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक फिल्म मेकर के लिए। हम लोग ने जब फिल्म बनाई थी तो हमने तो ये सोचा था कि कोई भी एक अवार्ड अगर हमें मिल जाए तो हम इसको फिल्म को प्रमोट करने में या लोगों तक पहुंचाने में बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे इसको अवार्ड्स मिल जाएंगे। तो एक फिल्म मेकर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए और फिल्म से जुड़ी हुई पूरी टीम के लिए ये बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारी मेहनत, इतने सालों की जो मेहनत है, फ्लोर पे जाने के बाद में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इसको सराहा जाता है। तो मैं थैंक यू सो सारे फिल्म फेस्टिवल्स का, मेरे सारे आर्टिस्ट, मेरे सारी टीम का,
जिन्होंने सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, और स्पेशली डॉक्टर्स की टीम। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लास्टली ये है कि शुरुआत कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भारत टॉकीज का। अभी आपको मालूम है कि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उसके अधीन आने वाला है, जहाँ की लिमिटेशंस रहेगा, उसके बारे में बताइए। आप तो सोशल सिनेमा दिखाने वाले हैं, तो जो लोग नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखाना चाह रहे हैं, उनके लिए कितना बैरियर होगा? फिर से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा इस सवाल के लिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो एंटरटेनमेंट जो सिनेमा है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर दो ही बातें होनी चाहिए। एक तो फैमिली इंटरटेनमेंट हो कि फैमिली के साथ में बैठ के एंटरटेन कर सके, क्योंकि जहाँ पे हम एक ऐसा सिनेमा बनाते हैं जहाँ पे हम फैमिली चद्दर के अंदर फिल्में देखते हैं या तो हम अकेले फिल्में देखते हैं, तो वहाँ पे फैमिली यूनिटी ख़त्म हो जाती है और हम जो जीवन जीते हैं फैमिली के साथ जीते हैं। तो सिनेमा एक माध्यम है जहाँ पे फैमिली इंटरटेनमेंट होना चाहिए ताकि हम हमारे माइंड को रिलैक्स कर पाए फैमिली के साथ में। और अभी जिस प्रकार का ज़्यादातर सिनेमा बन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हम फैमिली के साथ बैठ के हमारे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर इसको देख पाते हैं। एक दूसरी तरफ है कि समाज की वो पीड़ा यानी सोशल अवेयरनेस, तो मुझे लगता है कि समाज की पीड़ा को लोगों तक पहुंचाने का ये सबसे बेस्ट माध्यम है सिनेमा। तो मुझे लगता है ये दो ही कंटेंट होना चाहिए, या तो फैमिली इंटरटेनमेंट होना चाहिए या तो सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनना चाहिए, ताकि समाज कुछ ले सके सोल्यूशन के साथ में, और एक हम ये दुनिया छोड़ने के जाने के पहले कुछ ऐसी फिल्में बना पाए जिस फिल्मों को देख के हमारी आने वाली पीढ़ी इंस्पायर हो पाए। इसके लिए भारत टॉकीज़ पे जितने भी फिल्म मेकर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि बालपन है, ऑन द वे है, बस एक बार है, जिहाद है, डॉक्टर नाम्बियार, जितने भी फिल्में आ रही है, हम ऐसे फिल्मों को भारत टॉकीज़ पे ले रहे हैं जो अवार्ड ले चुकी है या तो किसी न किसी सोशल मुद्दे पे है। तो विक्रांत जी, जब आपने शुरुआत की होगी भारत टॉकीज़ की, आपका सोशल एक मूवी थी, तो आपने सोचा था कि आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं, या तो ये हिट होगी या तो फ्लॉप होगी, लेकिन जो लोगों का प्यार मिला है आपकी फिल्में जब सामने आई ना, और सबसे मेन है कि पेरेंट्स इसे काफ़ी प्यार दे रहे हैं, तो ये आपके लिए कितना आपको एक एनर्जी आपके अंदर देती है कि इस तरह की फिल्में मैं और आगे बनाता रहूँ मेरा भी? हाँ, देखिए कि जब भी कोई आप अच्छा काम करते हो और अगर आपने पहले ही आपके माइंड को ये कमांड दे दिया कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये सक्सेस हो पाएगा, लोगों तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा, तो इसका जवाब ये है कि नहीं पहुँच पाएगा। इसके लिए नहीं पहुँच पाया क्योंकि आपकी जो शुरुआत है अगर एक इंसान तक भी पहुँच जाती है तो आप हिस्ट्री निकाल के देख लो। आज 135 करोड़ की आबादी में कुछ चुनिंदा भगवान ही रूल कर रहे हैं। एक ही यीशु क्रिस्त है, एक ही सिद्धार्थ गौतम है, एक ही गुरु नानक है, और एक ही इंसान पूरे कायनात को रूल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे दिमाग में एक अच्छी सोच है तो हमको उसको रिएक्ट करना ज़रूरी है। लोग रिस्पॉन्ड क्या करेंगे ये मुझे लगता है वक्त के ऊपर छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने कभी भी नेगेटिव सोचा ही नहीं है। बस ये समाज की पीड़ा है और ये मेरे पास में माध्यम मिला है, ये कैमरा, और ये मेरे पास में ऑडियंस है, और मैं इसको पहुंचाने की मेरी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। के जी, मेरा सवाल आपसे बच्चों के रोल मॉडल हैं आप, चाहे फिल्म हो चाहे टीवी सीरियल हो, जब भी बच्चों को गुदगुदाने की बात आती है तो आपको याद किया जाता है। क्या कोई ऐसा किरदार अभी रह के आए जो बच्चों को आप उसमें कहना चाहते हैं, जो दर्द है अंदर का बच्चों का, वो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बाकी रहेगा? बस ये मोंटो की पलटन जो है ये फिल्म सक्सेस हो जाए, और इसके बाद मोंटो की पलटन दूसरी भी ला रहे हैं ये सर, और पार्ट 2 भी आ रही है। तो इस तरह के सब्जेक्ट जब भी आते हैं तो एक अलग ही जिज्ञासा हो जाती है, काम करने का मन करता है। बाकी जो सीरियल मैं करता हूँ, फिल्में करता हूँ, कमर्शियल करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे विक्रांत जी और मैडम के जैसे लोग आ जाएं, मैं तो उनका पैर छूना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अगर इंडस्ट्री में आते हैं तो पेरेंट्स को शिक्षा मिलती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएंगे और फिर वो बच्चा कल का पेरेंट्स बनेगा, तो आगे आने वाला भविष्य हमारे भारत का सुधरेगा। मैं इस फिल्म से स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, लोगों को नहीं कि ऐसा आकर के हमारे यहाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी है, इंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी है। भारत के ऑडियंस को, हमारे सभी दोस्तों को, सभी दर्शकों को
ऐसी फिल्मों को ज़रूर देखना चाहिए और ऐसे फिल्मों को बढ़ावा ज़रूर देना चाहिए। दया सर जो CID में काम करते हैं, उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी इनके लिए। अभिजीत सर ने भेजा है, साटम साहब ने भेजा है इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बप्पी लहरी दादा ने भेजा है शुभकामनाएं। लता दीदी, लता मंगेशकर जी, चूँकि तो उम्र भी उनका हो चुका है और इस कोरोना काल में बहुत सारा, लेकिन फ़ोन पर उन्होंने भी बोला कि बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सो सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं। अब आप लोगों का ये जो आप लोग थोड़ा मेहनत कर दीजिए, इस फिल्म को चला दीजिए। और जो हमारे ऑडियंस है, ऑडियंस देख लीजिए, भले ही आप लोग कितना भी एंटरटेन हो जाओ, भले ही वो एक फिल्म आई थी विद्या बालन जी की, वो क्या था, हाँ, जिसमें वो विद्या बालन जी की एक फ़िल्म आई थी, उसमें बहुत कमर्शियल हिट फिल्म थी। नहीं, एक और थी उसमें, हाँ, दूसरी बहुत पहले जो भी, हाँ, कोई भी थी, हाँ ठीक है। मैं तो ये बोलना चाहता था कि वैसी फिल्में बहुत अच्छी आती हैं जो आप हिट कर देते हैं। सलमान खान की फिल्में हिट करते हैं। आपको कमर्शियल के साथ साथ ऐसे सब्जेक्ट को भी देखना चाहिए, ऑडियंस को ऐसे सब्जेक्ट को भी देखना चाहिए, न कि हर जगह नाच गाना से काम नहीं चलता है। हर जगह वो बॉडी मैं हूँ, हुड़ हुड़ दबंग दबंग, तो दबंग से भी थोड़ा बाहर आइए, क्योंकि आपका जो दबंग आएगा, इस दबंग को आप क्या दिखाओगे, इस दबंग के लिए कुछ तो कर जाओ। तो इस दबंग के लिए विक्रांत जी ने ये शुरुआत की है। तो मैं तो बस इतना ही चाहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए। आप लोग भी, मीडिया का भी काम है, आप लोग भी सहयोग दीजिए इस फिल्म को और इस फिल्म को हिट कराइए। सभी लोग अपने अपने स्तर से इस फिल्म को देखिए भी। आप लोगों को भी कसम है, अभी जाकर आप सबको कसम है, अभी जाकर भारत टॉकीज़ को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस फिल्म को आज रात में देखिए और उस पर कमेंट लिखिए कि हाँ आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। आपको अच्छी नहीं लगती है, आप लिखिए उस पर कि मुझे अच्छी नहीं लगी। तो हर किसी का फ़र्ज़ बनता है, यहाँ आते हैं, बड़े बड़े स्टेज पर जाते हैं हम लोग, बहुत बड़ी बड़ी भाषण देते हैं और अपने घर पे जाकर चादर में सो जाते हैं। तो वो भाषण देना से अच्छा है थोड़ा सा कुछ नहीं 200 का 100 का सब्सक्राइब करके और इस फिल्म को देख 49 रुपीज़ ओनली लीजिए। अभी 49 का हो गया है, तो 49 का सब्सक्राइब करके इन फिल्मों को देखिए और बढ़ावा दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आप सबके सामने मैं उनका पैर छूना चाहता हूँ, ऐसी देवी का, कि इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे माँ होने चाहिए और ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए जिनकी सोच इतनी अच्छी है। थैंक यू सो मच। जानना चाहूँगा आपके बारे में कि जो प्रोजेक्ट्स है क्या कहना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज है, सोशल मैसेज है विक्रांत सर की तरफ से, और कितना ज़रूरी है इस तरह के मैसेज पे फिल्म बनाना, इस तरह के सोशल इनिशिएटिव पे फिल्म बनाना। नमस्कार, पहले तो मेरा नाम आर्यप्रिय है और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने इस फिल्म में काम किया है और विक्रांत सर ने मुझे चांस दिया है। इसके पहले जब मेरे इनसे बात हुई थी तो इन्होंने जब फिल्म के बारे में मुझे बताया था कि ये बच्चों के सब्जेक्ट के ऊपर, उनके मसलों के ऊपर है, तो मैं एक्साइटेड हो गया था कि आई वांट टू डू। और जब मैंने फिल्म की और जब कहानी पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैं एकदम चौंक सा गया कि अरे एकदम नई तरह की कहानी और बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉजिटिव ब्रेन प्रोग्रामिंग के बारे में इन्होंने जो बताया है और एक नए तरह का काम इन्होंने शुरू किया है। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि आप सब लोग देखें और अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को दिखाएं, क्योंकि ऐसी फिल्में अब कम बन रही हैं। और जो हम अपने बच्चों को क्या देंगे, जो अगले आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको हम क्या सिखाएंगे। हम जैसे अमूमन होता क्या है कि फादर मदर अपने बच्चों पर अपनी ख्वाहिशें डालते हैं और चाहते हैं कि जो वो खुद न कर पाए ज़िंदगी में वो बच्चे करें, लेकिन उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं, उनमें भी कुछ हुनर होता है, वो भी कुछ सपने देखते हैं। तो उनको वो ध्यान में रखें और उस ढंग से वो आगे उनको ग्रूम करें, बढ़ाएं।
जैसे मेरी एक भूमिका थी कि मैं एक ऐसा फादर हूँ जो शराब पीता हूँ, बच्चे के साथ मिसबिहेव करता हूँ। मेरी जो बीवी का रोल किया है खुशी जी, उनके साथ भी मैं अच्छा बिहेव नहीं करता हूँ। तो ये सब चीज़ें बड़ी दुखद है और बाद में मैं रिपेंट भी करता हूँ। तो विक्रांत सर ने जो कहानी लिखी है एकदम बेहतरीन है और मैं शुक्रगुजार हूँ वो भारत क्या नाम टॉकीज़, हाँ भारत टॉकीज़ का, जिन्होंने मुझे चांस दिया। और आप सबसे गुजारिश है कि भारत टॉकीज़ को आप ज़रूर डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और बेहतरीन मूवीज़ को देखें। और मुझे गर्व है कि मोंटू की पलटन 29 इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड उसने जीता है, तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र और गर्व की बात है। मैं इंट्रोडक्शन और बताइए क्या कहना चाहेंगे मोंटू की पलटन के बारे में और सर के बारे में, विक्रांत जी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। सर विक्रांत जी, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर एंड मंटू की पलटन जो मूवी है उसमें जो इंडियन कल्चर है, जो मीन्स बचपन से हमें सिर्फ मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि मार्क्स इतना ही आना चाहिए, इतना ही वो होना चाहिए, बट दूसरा कोई एजुकेशन अदर्स एक्टिविटीज़ वो सब गार्जियन फॉलो नहीं करते। सॉरी टू से आई एम फ्रॉम कायरो, सो मेरी हिंदी थोड़ा सा ख़राब है, प्लीज़ एडजस्ट। सो जो है जैसे कि इन्होंने जैसे बोला कि मम्मी पापा जो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर ही बनना चाहिए, बट बच्चों का भी एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। सो सबका अलग अलग ख्वाहिश है, सबका इच्छा अलग होता है। बच्चे सोच रहा होगा मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे सचिन जैसा बनना है, बट उसको थोप दिया जाता है कि नहीं आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा या तो टीचर बनना पड़ेगा या इंजीनियर। एंड देन जैसे घर पे अगर माहौल जो होता है वो सही नहीं होने से समहाउ कहीं ना कहीं बच्चों का जो दिमाग में असर पड़ता है, बड़े होके वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। सो इन फ्यूचर जब वो काम करने जाता है या तो बाहर जाता है तब उसको डिफ़िकल्टीज़ बहुत काफ़ी फेस करना पड़ता है। सो ऐसी मूवियों से गार्जियन को, बच्चों को, सबको, हमारे समाज को बहुत सीख मिलता है। थैंक यू। सर पहले तो इंट्रोडक्शन दिया, सर के बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे आप, उनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रीज़न होता होगा, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में? विक्रम सर के बारे में जितना कम उतना कम है। और जो ये फिल्म है मोंटू की पलटन, इससे पहले भी हमने बच्चों के ऊपर एक फ़िल्म बना चुके हैं और इनको मैंने प्रॉमिस किया है कि जब तक आप बच्चों के ऊपर फिल्म बनाएंगे तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और बाकी बोलने के लिए तो बहुत लोगों ने बोला, तो वही रीज़न है कि बच्चों के ऊपर ख़ास मतलब इंडिया में काम करने वाले बहुत कम लोग हैं इनके जैसे, जो मेरे ख्याल से 5-6 साल से उसी विषय के ऊपर लगे हुए हैं। तो एज ए प्रोड्यूसर आप बहुत भरोसा करते हैं विक्रांत जी पे, और प्रोड्यूसर का मकसद भी होता है कि जो पैसा लगे वो रिटर्न आए, तो उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, भरोसे की बात करते हो तो ये तो इनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको कोई मतलब कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है। और मैं फिल्मी दुनिया का आदमी हूँ नहीं, पहली बात तो। जो अच्छा विषय लेकर आते हैं समाज के लिए, तो हर आदमी का एक कर्तव्य होता है कि जो अच्छा कर रहा है उसको खुद न कर सके तो दूसरे को सपोर्ट करें, तो मैं वही कर रहा हूँ जैसा। और ये निरंतर आगे तक भी चलता रहेगा? हाँ, वैसे तो हमने ये नक्की किया कि लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। जब तक ये बच्चों के ऊपर काम करते रहेंगे तब तक हम लोग साथ ही में रहेंगे। विक्रांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रोड्यूसर के बारे में? ऐसे प्रोड्यूसर सबको मिले तो सबका कल्याण। पहली तो यह है कि एक नॉन फिल्मी इंसान होने के बावजूद उन्होंने मेरे पे जो विश्वास रखा, ये विश्वास सही में इस 2020 के युग में, आधुनिक युग में बहुत ही अलग सा मुझे महसूस हुआ कि एक इंसान जो लाखों रुपया प्रोजेक्ट पे लगाने के बाद एक सवाल भी नहीं पूछता, और वो सिर्फ इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। और लगातार मेरी तीनों फिल्में में हमेशा से ही एसोसिएट प्रोड्यूसर रहे हैं वो, और जब भी इन्होंने जो भी पैसे लगाए कभी भी मुझे एक भी सवाल नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ कि इनके जैसे प्रोड्यूसर्स और पूरे हिंदुस्तान में से आगे आए, और मेरे से जो सामाजिक मुद्दे पे कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कनेक्ट करें, क्योंकि जितने आप दान धर्म और जगह पे करते हो तो मुझे लगता है समाज के लिए अब आप रिटर्न दे पाओ तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। प्रिया, आप कुछ ऐड करना चाहोगे सर के बारे में एज ए प्रोड्यूसर? सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि सर का जो सोच है
वो बेसिकली हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो एक्चुअली करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो सर का ये एक मॉड्यूल सा बन गया है कि वो जो भी चीज़ करते हैं, जो भी फिल्में बनाते हैं, या फिर उन्होंने जो भारत टॉकीज़ भी हमने जो ओपन किया है उसमें भी हम ऐसी ही मूवी ले रहे हैं जो हमारी सोसाइटी को कुछ मैसेज दे रहा है। और हम ये थैंक यू। जाएंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा जर्नी इस मोंटू की पलटन की। बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, आपके अभी बच्चे नहीं है मेरे ख्याल से, और क्या है ना 2 अच्छा 2 है अच्छा, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसी रही जर्नी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मोंटू की पलटन की जो जर्नी है वो बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। खास करके पंकज बेरी सर जो तेलानी रामन में एक बहुत ही अच्छा किरदार कर रहे हैं, वो अभी शूटिंग पे ही है, इसलिए वो पहुंच नहीं पाए, तो मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूं, क्योंकि हर जगह अवार्ड लेने के लिए हमेशा मेरे साथ में रहे हैं, लेकिन प्रमोशन में वो अक्सर उनका शूटिंग कोइंसिडेंस से नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले आते के जी और पंकज बेरी सर के साथ में मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। और रहा सवाल एक सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही है मेरे दिल में कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, और ये जो करने की जो क्रिया के अंदर, इस सफ़र के अंदर जो मुझे मज़ा आ रहा है ना, वो एक अपने आप में बहुत ही पॉजिटिविटी है। और जितने भी लोग मेरे से टकरा रहे हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो शूटिंग हो, स्पॉट बॉय हो, हर तरीके से, तो मैं बच्चों के ऊपर जो टिप्स है, मेरी चीज़ें हैं, मैं उन तक पहुँचाते रहता हूँ, और एक मुझे बहुत ही पावरफुल माध्यम मिला है। उसको छोड़ूंगा नहीं मैं भी। एक सवाल और आखिरी चलते चलते, जैसे प्रिया ने पूछी थी कि कहाँ पे ये शूटिंग कहाँ पे आपने किया, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो हमको कि मैंने कहानी पढ़ी थी बचपन में विक्रम बेताल, और मेरे को जंगल में कोई फिल्म बनानी थी, और उस जंगल में जब हम लोग ने सर्वे करके हम लोग ने एक एऊर का जंगल मिला, लेकिन वहाँ पे हमको सबसे बड़ी टफ काम ये था कि वहाँ पे शेर थे, वो भी खुले, और उस कंडीशन में दिन में भी शेर आ जाते थे वहाँ पे, और बच्चों को लेके काम करना, और के जी भी उन बच्चों के अंदर पूरा शामिल हो जाते थे। अब क्या होता था कि हमारे सुबह 5 बजे की शिफ्ट रखती थी, और वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड्स लोगों ने हमको बोला था कि आप यहाँ पे 5 बजे के साथ रह नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हादसे होते हैं। और हम 5 बजे जब पहुँच जाते थे बहुत सारे सीन्स में, जैसे एक सीन सुनाता हूँ कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और ये लोग बैठे हुए हैं, के जी झाड़ पे चढ़े हुए हैं, और मैं एक्शन बोल रहा हूँ और कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों को वो शेर दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा था, और सारे पूरे सब स्तब्ध है। और फिर उसके बाद में अचानक में 8-10 शेर पीछे आ गए, और शूटिंग को बंद करना पड़ा। फिर हम लोग को मैं थैंक्स टू मुंबई पुलिस का, जिन्होंने फिर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। जैसे हमारे ATS चीफ जो ताज के हमले में थे, निवृत्ति कदम सर, उन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया, वो खुद अवेलेबल भी थे वहाँ पे, और इस सब्जेक्ट को रुकावट कहीं पे ना हो इसलिए पुलिस फोर्स दी गई मुंबई पुलिस ने, और हम लोग ने पूरे प्रोटेक्शन के साथ में उस जंगल में इस फिल्म को शूट किया। जो आप जब इसको फिल्म को देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार एक विक्रम बेताल वाला जो टेस्ट है वो आपको मिलेगा। और बेताल कौन है या विक्रम कौन है उसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, और एक नया टेस्ट आपको मिलेगा इस फिल्म के अंदर। तो इस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा अच्छा मोमेंट्स कौन सा रहा जो आपको हमेशा ही याद होगा, कि कितनी भी फिल्में आप कर रहे लेकिन वो मोमेंट्स है जो आपको हमेशा याद रहेंगे, और ऐसा बैड मोमेंट्स कौन सा रहा जो आपको लगता हो कि नेक्स्ट फिल्म अगर मैं करूँ तो शायद ये मेरे साथ ना हो? पहले तो बैड मोमेंट के बारे में बताता हूँ। बैड मोमेंट ये था कि हमारे पास में टाइम का शॉर्टेज था, क्योंकि सूरज ढलने के पहले हमको शूटिंग करना था, टाइम कम था, के सर के पास में डेट लॉक थी, और कोइंसिडेंस ये होता था मेरी डेट को जब शूटिंग होती थी सर की शूटिंग डन हो जाती थी, और मैं सर को बोलता था प्लीज़ सर आज कैंसिल मत करो, और उनकी शूटिंग कैंसिल हो जाती थी। तो बोलते थे विक्रांत जी आपके लिए तो मैं फ्री में शूटिंग कर रहा हूँ, मेरे को जो पेड है वो मेरी शूटिंग कैंसिल हो जा रही है, आपके चक्कर मेरा लॉस हो रहा है। मतलब सर ब्लेसिंग में काउंट करो आप पैसे को, पैसे में मत काउंट करो। इसलिए थैंक यू सर, आपने सपोर्ट किया। और तो इसके अंदर सब अच्छी ही जर्नी है, अच्छी ही मोमेंट है, अच्छी ही यादें हैं। बस एक जो बैड मोमेंट है मेरे साथ में वो हुआ, मैं बहुत ही सैड फील करता हूँ कि मेरी जितने भी कास्ट क्रू, मेरी सेटिंग डिपार्टमेंट है,
शूटिंग के अभाव से हम लोग लंच ब्रेक टाइम पर नहीं कर पाते थे, हम लोग नाश्ते का स्नैक्स का ब्रेक नहीं कर पाते थे, तो खाने पीने की बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी, जंगल में खाना लेके जाना और ब्रेक नहीं कर पाते थे। तो सारे टीम ने मुझे ये सपोर्ट किया कि सर आप पिक्चर को कंप्लीट करो, और ब्रेक हम 1 बजे का ब्रेक कभी 3 बजे करते, कभी कभी हम लोग ने ब्रेक ना करते हुए भी हम लोग ने दोपहर का खाना डायरेक्टली रात में 7 बजे खाना खाया है। इसलिए मैं बहुत ही थैंक्स हूँ मेरे सारे क्रू मेंबर, मेरे सारे आर्टिस्टों का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बिना खाने के आपने शूटिंग किया। लॉकडाउन कोरोना महामारी फैली थी, इस दौरान